Okay, students, let's see this. Write the simplest form of the rationalizing factor for the given system. एक सेट है इधर √32, किससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा. अभी √32 इंटू √32 डेफिनेटली और रैशनलाइज होएगा. √32 स्क्वायर 32 रैशनल नंबर है, लेकिन हमको सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए. तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा तो √16 into 2 equal to 4√2. Therefore हम लोग इसको √2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, रैशनल आएगा. 4√2 into √2 is equal to 4 into 2 equal to 8. Therefore simplest form of rationalizing factor, simplest form of rationalizing factor is √2. देखो इसको √32 को 4√2 कर सकता है. 4√2 into √2, √2 into √2 is 2, 4 into 2 is 8. रैशनलाइज हो गया. तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजेशन फैक्टर इज √2. उसका मतलब इसको √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो रैशनल होगा. और इन अदर वर्ड्स ऐसा नहीं कर सकते. √32 into √2 equal to √32 into 2 equal to √64 equal to 8. So √2 is the simplest number with which we can multiply this so that it becomes the rational. Next is right. Idea आ गया तुम लोगों को. Next one. Second. √50. Of course √50 से multiply करेगा तो √50 स्क्वायर होएगा, 50 आएगा. √50 is a rational factor, but simplest form चाहिए. इसके लिए हम लोग √25 into 2 equal to 5. अभी simplest form is 5√2. देखो 5√2 into √2 equal to 5 into 2 equal to 10. रैशनलाइज हो गया. अब एक √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये रैशनलाइज हो जाएगा. और इन अदर वर्ड्स आई राइट √50 is equal to √50 into √2 equal to √100 equal to 10. ऐसा भी कर सकते हैं. देखो √2 is the simplest form. Therefore √2 is simplest form of rationalizing factor. एक इसका भी हो गया. अभी नेक्स्ट √27 equal to 9 into 3 equal to 3√3. अभी √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3√3 into √3 equal to 3 into 3 equal to 9. Therefore √3 is the simplest form, simplest rationalizing factor. Rationalizing factor. Now next is 5√10. 3/5. 3/5 into √10. अभी इसको √10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3/5 into √10. Simplest form is 3/5 into √10 into √10 equal to 3/5 into 10 equal to 6. So √10 is the rationalizing factor. √10 is simplest form of
factor. ये भी हो गया. Next is 3 root 27. अभी next is 3 root 27. 3 root 27. इसको एक काम कर सकते हैं. 3 into 9 into 3 equal to 3 into 3 into root 3 equal to 9 root 3. अभी पूरा 9 root 3 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, सिर्फ root 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा. Therefore root 3 is the rationalizing factor. ये भी हो गया. उसके बाद 4 root 11. तो दूसरा कोई रास्ता नहीं, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. इसको मल्टीप्लाई करेगा तो इक्वल टू 4 root 11 इंटू इक्वल टू root 11 इक्वल टू 4 इंटू 11 इक्वल टू 40. Therefore root 11 is the rationalizing factor. Simplest rationalizing factor. ये हो गया. अभी next one. Here 4 upon 7 into root of 147. अभी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. आएगा रूट ऑफ 147 को 147 को 3 से डिवाइड करेगा तो नामोन मंगल 4 upon 7 into root of क्या है 7 into 7 into 3. इसमें इक्वल टू 4 upon 7 into 7. 2 7 से 1 7 बाहर आएगा into root 3. 7 and 7 कैंसिल होगा 4 root 3 होगा. This has become 4 root 3. Now 3 upon 8 into root of 192 equal to 3 upon 8 into 64 into 3. 64 into 3 is 192 equal to 3 upon 8 into 8 root 3. कट हो गया equal to 3 root 3. अभी next is minus 1 upon 5 into root of 70. equal to minus 1 upon 5 into root of 25 into 3 equal to minus 1 upon 5 into 5 root 3 because root 25 is 5 cut away equal to minus root 3. So this is here and this is here. So add the first one is 4 upon 7 into root 147. क्या मिला 4 root 3 मिला अपने को प्लस 3 upon 8 into root 192 अपने को मिला 3 root 3 माइनस 1 upon 5 into root 75 मिला अपने को माइनस root 3. This is equal to 4 plus 3 minus 1 into root 3. ये root 3 सब जगह से कॉमन लिया. 4 plus 3 7 minus 1 is 6. 6 root 3 is the answer. ये हो गया अपना सिंप्लीफाई. Next, second one करेंगे. Root 216. Second one क्या है? 5 root 3. 5 root 3 plus 2 root 27 plus 1 upon root 3.
अभी दिस इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 2√27 इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ 9 इंटू 3 इक्वल 2 इंटू 3 इंटू √3 इक्वल टू 6√3. अभी 1/√3 उसको रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे करेंगे? 1/√3 इंटू √3/√3 इक्वल टू √3/3. √3 into √3 इक्वल टू 1/3 इंटू √3. ये हो गया ये वाला. सो वी विल राइट डाउन 5√3 ऐसा लिखेंगे प्लस इसको हम लोग सिंप्लीफाई किया 6√3 होगा. इसको सिंप्लीफाई किया जाए प्लस 1/3 इंटू अभी √3 कॉमन लेंगे. 5 प्लस 6 प्लस 1/3 इंटू √3 इक्वल टू 5 प्लस 6 इज 11 प्लस 1/3 इंटू √3. अब इसको सिंप्लीफाई करें. 11 3 are 33 प्लस 1/3 इंटू इक्वल टू 33 प्लस 1 इज 34. 34/3 इंटू. ये भी हो गया हमारा. सेकंड वाला भी हो गया. अभी थर्ड वाला. रूट 216 इज इक्वल रूट ऑफ 216 को मैं फैक्टराइज कर 216 2 से डिवाइड करेगा तो 108 और 2 से डिवाइड होगा 54 और 2 से डिवाइड करेगा तो 27 और 3 से 9. So 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into ऐसा फैक्टराइज करेगा तो इजी पड़ेगा तुमको. 2 2 साथ में आएगा, 2 3 साथ में आएगा. एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, बाकी बचता है 2 and 3 6 हो जाते हैं. पर 6√6 हो गया. एक 3 बाकी है, एक 2 बाकी है. 6√6 हो गया. And 5√6 is equal to, yes, 5√6 का कुछ करने का नहीं. 2√94 equal to root of 294 को 294 divided by 2 147. अभी 3 से डिवाइड करेगा तो हम 2 into 3 into 49 equal to root of 2 into 3 into 49. 49 का रूट है equal to 7√6 हो गया. इसका भी हो गया. And third one 3/√6 उसको रैशनलाइज करेंगे. 3/√6 into √6/√6 equal to 3√6/6 कट हो जाएगा और √6/2 इसके बदले हम लोग 2 डालेंगे. So finally this will come question number 3 का पहला वाला क्या √216 equal to 6√6. उसके बाद माइनस 5√6 ऐसा लिखेंगे 5√6 प्लस √294 7√6 minus 3/√6 equal to √6/2. अभी √6 कॉमन ले लेंगे. क्या √6/2 है ना. क्या मेरा √6/2 बराबर. अभी हम लोग इसको साथ में लिखेंगे 6 minus 5 plus 7 minus 1/2
इंटू रूट सिक्स कॉमन निकाला हर एक से 6 minus 5 is 1 1 plus 7 is 8 8 minus half is 7 and a half 8 minus half is 7 and a half so 7 and a half into root 6 that is 15 upon 2 into root 6 ये आंसर ये भी हो गया अपना अभी फोर्थ वन फोर्थ वन क्या है 4 root 12 minus root 75 minus 7 root 48 12 को कुछ नहीं कर सकता 12 को कर सकते 4 into 3 minus root of 75 is 25 into 3 minus 7 root of 16 into 3 तो अलग अलग नहीं किया डायरेक्टली किया है 4 into 2 root 3 root 4 equal to minus 5 into root 3 root 25 is 5 minus 7 into root 16 is 4 into root 3 ये आएगा 8 root 3 minus 5 root 3 minus 28 root 3 अभी root 3 कौन लेना 8 minus 5 minus 28 into root 3 8 minus 5 is 3 minus 28 is minus 25 minus 25 ये भी हो गया लास्ट हो गया 2 root 48 2 root 48 minus root 75 minus 1 by root 3 अभी 2 root 48 को 2 into 16 into 3 तो 2 into 4 into root 3 equal to 8 root 3 पहला वाला आ गया 8 root 3 हो गया दूसरा minus root 75 is minus root 75 is minus root 25 into 3 equal to minus 5 root 3 ये भी हो गया 1 by root 3 is equal to root 3 upon 3 because ऊपर नीचे root 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो root 3 आएगा root 3 into root 3 is 3 so root 75 ये आ गया equal to minus 5 root 3 third one is this root 3 upon 3 so इसको हम लोग लिखेंगे अभी 5 root 3 ये root 3 ये हम लोग ये कर रहे हैं 2 into root 48 2 into root 48 कितना आ गया 8 root 3 ये आ गया 8 root 3 minus root 75 क्या आ गया minus 5 root 3 minus 1 by root 3 is root 3 upon 3 अभी हम लोग root 3 कॉमन लेंगे 8 minus 5 minus root 3 minus 1 by 3 into root 3 कॉमन निकाला हर एक से 8 minus 5 is 3 minus 1 by 3 into root 3 9 minus 1 upon 3 into root 3 equal to 8 upon 3 into root 3 ये हो गया yes let us do this how to rationalize the denominator 1 by root 5 equal to ऊपर नीचे root 5 से मल्टीप्लाई करना है 1 by root 5 into root 5 upon root 5 equal to root 5 upon root 5 into root 5 is 5 तो हो गया
वी आर rationalized denominator. इधर 2/3√7. अभी पूरा 3√7 से मल्टीप्लाई नहीं करने का, सिर्फ √7 से मल्टीप्लाई करना, इक्वल टू 2/3√7 into √7/√7 equal to 2√7/3 into √7 into √7 is 7 equal to 2√7/20. ये भी हो गया, ये दोनों हमारा हो गया. अभी ये करने वाले ये देखो, डिनोमिनेटर में बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर है, बाइनोमियल है, जैसे मोनोमियल है. बाइनोमियल होगा तो उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1/√3 minus √2 equal to 1/√3 minus √2 into √3 plus √2 upon √3 plus इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. इधर माइनस होगा तो प्लस डालने का, इधर प्लस होगा तो माइनस डालने का. कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इक्वल टू √3 प्लस √2. तो देखो a minus b into a plus b फॉर्मूला, a minus b into a plus b is a square minus b square. तो √3 square minus √2 square equal to √3 plus √2 upon √3 का स्क्वायर आएगा 3, √2 का स्क्वायर आएगा 2 equal to √3 plus √2 upon 1. 1 लिखने का जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में √3 प्लस √2, इस 1 का कोई मतलब नहीं है, वो भी हो गया. अभी ये कर रहे हैं, अभी ऊपर करके निकाल देते हैं. ये भी हो गया. अभी 1/3√5, 1/3√5 is in the fourth one, plus 2√2 equal to 1/3√5 plus 2√2 into कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना. 3√5 plus 2√2 अपॉन 3√, प्लस नहीं, इधर प्लस होगा तो कॉन्जुगेट माइनस रहेगा, माइनस 3√5 minus 2√2 बराबर equal to 3√5 minus 2√2 upon 3√5 का स्क्वायर minus 2√2 का स्क्वायर equal to 3√5 minus 2√2 upon 3 का स्क्वायर आएगा 9, √5 का स्क्वायर आएगा 5, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, इक्वल टू 3√5 minus 2√2 upon 45 minus 8, equal to 3√5 minus 2√2 upon 45 minus 8 is 37 upon 37. ये हो गया तुम्हारा आंसर. राइट, अभी लास्ट 12 upon 4√3 minus √2 is equal to, पहला ये लिखने का, फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेगा. 12 upon 4√3 minus √2 into इसका कॉन्जुगेट 12 upon 12 into कॉन्जुगेट आएगा 4√3 plus √2, 4√3 plus √2 upon 4√3 ये 12 इधर लिखा है,
12 into 4 root 3 plus root 2. इसका कॉन्जुगेशन ऊपर नीचे, ये आएगा 12 इंटू 4 root 3 plus root 2 upon a minus b ले लो, 4 root 3 square minus root 2 square equal to 12 into 4 root 3 plus root 2 upon 4 का स्क्वायर 16 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू 12 इंटू 4 root 3 plus root 2 upon 48 minus 2 equal to 12 into 4 root 3 plus root 2 upon 48 minus 2 is 46. अभी हम लोग उसको 12 and 46 को सिम्प्लीफाई कर सकते हैं. 6 ये 23, 6 upon 23 कट होएगा 2 से 6 आएगा 23 होगा into 4 root 3 plus root. That will be the answer of this. That completes the problem set. I hope you have understood this, and please like and also subscribe. Thank you. We'll see you for the next chapter.